Now it's time to head out of the cities and onto the highways for a long drive. City traffic usually चलता है around 30 to 50 kilometers per hour की स्पीड पे और हाईवे ट्रैफिक की मूवमेंट होती है 80 kilometers per hour and above. Speed wise it is a big gap. And to enable a smoother transition from lower city speeds to higher highway speeds, we have service roads. तो जब आप एक हाईवे अप्रोच करते हो, you usually have to take some sort of service road or an entry ramp to enter the highway. And this entry ramp acts as the perfect bridge between two speed limits of cities and highways. तो आप ये रैंप यूज कर सकते हो to increase your speed and match your speed to the highway traffic movement. और ये स्पीड मैच करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप स्लो स्पीड्स पे हाईवे ज्वाइन करोगे, you will disrupt the whole traffic movement on that highway. Just like granting entries to the highways, service roads also act as exit points for the highways, जिन्हें यूज करके you can come back to the cities. और एग्जिट रैंप का काम भी सेम ही होता है, जस्ट दैट यू आर लूजिंग स्पीड हियर. हाई स्पीड हाईवे ट्रैफिक की मूवमेंट से व्हेन यू आर ट्राइंग टू एंटर द सिटी, आप ये एग्जिट रैंप का यूज करते हो टू रिड्यूस योर स्पीड फ्रॉम से 80 किलोमीटर पर आवर टू द सिटी ड्राइविंग स्पीड लिमिट ऑफ 30 to 40 किलोमीटर पर आवर. इससे आप ये इंश्योर करते हो कि यू आर नॉट एंटरिंग द सिटी ड्राइविंग लिमिट्स एट हाई एंड डेंजरस स्पीड्स फॉर दैट एनवायरमेंट. यस, सिटी में एंटर करते टाइम आपको स्पीड कम करना बहुत जरूरी होता है, बट इट इज नॉट दैट कि आपको स्पीड सडनली कम करना है. You can use the whole exit ramp to lose speed gradually. Service roads are usually designed to grant access to the highways and cities, but कभी-कभी service roads highway के parallel भी चलते हैं for local traffic, low speed vehicles and granting access to different properties. And this is a fuel for major problem. Are service road really bidirectional? While often treated as two-way lanes for local convenience, these are usually governed by general road safety rules, which are like keep left, drive slow, use indicators, and the most important, yielding to the main fast moving traffic while entering and exiting. Yielding is something we don't know, and rules we do not follow at all. This is basic civic sense, and hence सारे service roads are full of chaos at this moment, because of which हाईवे के सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ब्लॉक रहते हैं हमेशा. इतना ही नहीं, ब्लॉकेजेस इतने बढ़ जाते हैं कि हाईवे का ट्रैफिक भी जाम हो जाता है. एंड टू रिजॉल्व दिस मेजर प्रॉब्लम, हमें पहले ये जानना जरूरी है कि सर्विस रोड्स आर यूनिडायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल. हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि सर्विस रोड वन वे है या बाय डायरेक्शनल है? पहले तो ये अज्यूम करना छोड़ दो कि सर्विस रोड हमेशा बाय डायरेक्शनल ही होते हैं. And when it comes to identifying if it is a one way or not, just check the road signs installed on that road. अगर रोड साइंस दोनों तरफ फेस करके इंस्टॉल्ड है, इसका मतलब सर्विस रोड इज बाय डायरेक्शनल. आप दोनों तरफ से गाड़ी चला सकते हो. बट इफ इट इज नॉट, देन फॉर श्योर इट इज अ वन वे रोड. और कहीं कहीं जगह पर द साइंस आर क्लियरली इंस्टॉल्ड दैट इट इज अ वन वे रोड. My personal opinion is this whole service road topic is a big gray area in Indian traffic. और इंडिया का ड्राइविंग स्टैंडर्ड और सिविक सेंस इतना कम है कि हैविंग अ रूल विद सच ग्रे एरिया is just a big no. And on top of that, you add things like yielding and giving space to other people. बस एक बार अगर लोगों को भनक लग जाए कि ये सर्विस रोड बाय डायरेक्शनल है, they will apply the same rule to all the service roads they'll drive on in their entire life. And hence, it is impossible to control traffic flows on the service roads. कभी-कभी वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि रॉन्ग साइड से आने वाला ट्रैफिक मूवमेंट इज हेवियर देन द एक्चुअल डायरेक्शन of the service roads. And that is why, to avoid all this confusion, in my opinion, सारे service roads unidirection यानी कि one way ही होने चाहिए. दूसरा मेन रीजन जिसकी वजह से सर्विस रोड्स ब्लॉक होते हैं इज द एंगल ऑफ द सर्विस रोड एट विच इट मर्जेस विद द हाईवे. These angles are correct and convenient for entries and exits respectively. But अगर आप इसके रोल स्विच करके यूज करना स्टार्ट कर दोगे, then it will be a big inconvenience for you and the other people driving around you. Let's take an example. मान लो अगर आपको हाईवे एग्जिट करना है, but not using the exit ramp. आप वहां से
ऐसे एग्जिट करना चाहते हो जहां पे एंट्री रैंप मर्जेस विद द हाईवे, और इस मर्जिंग पॉइंट पे द एंगल ऑफ द सर्विस रोड इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द हाईवे, व्हिच एनेबल्स स्मूथ मर्जिंग ऑफ द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम सर्विस रोड्स टू द हाईवेज। ऐसे पॉइंट पे अगर आप एग्जिट लेने की कोशिश करोगे, देन द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज स्लो डाउन ऑलमोस्ट टू 0 किलोमीटर पर आवर। आपको गाड़ी ऑलमोस्ट रोकनी पड़ती है क्योंकि ये एंगल इतना स्टीप है कि आपको यहाँ पे यू टर्न लेने की जरूरत पड़ती है। तो पहले तो बिल्कुल स्लो हो जाओ एंड देन प्रिपेयर योर सेल्फ टू टेक अ लेफ्ट यू टर्न। अगर आप जैसे तैसे करके यू टर्न ले लेते हो, देन यू हैव टू नेविगेट ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड फेसिंग a high speed oncoming traffic and then take the exit। और लेसन 4 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर आप इंडिया में लेफ्ट यू टर्न लेने की कोशिश करते हो, मतलब आप कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रहे हो। एंड द सेम सिनारियो विल हैपन जब आप एग्जिट रैंप से एंटर करने की कोशिश करोगे। दिस जस्ट ब्लॉक्स द होल जंक्शन which includes the city road, the highway and the service roads connecting these two main roads। जो लोग पुणे में रहते हैं या फिर रेगुलरली मुंबई पुणे अप डाउन करते हैं, उन्हें भूमकर चौक तो पता ही होगा। दिस जंक्शन ग्रांट्स एक्सेस टू द पिंपरी चिंचवड एरिया, हिंजेवडी आईटी पार्क एंड द हाईवे एक्सेस टू मुंबई एंड बैंगलोर ऑन आइदर साइड्स। देयर इज नॉट वन सिंगल डे when the whole junction is not blocked, और इसका रीजन द सेम सिनेरियो दैट आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ, यूजिंग द सर्विस रोड्स इनकरेक्टली। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई जंक्शन है जो हमेशा ब्लॉक्ड रहता है, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत सिंपल चीज है, अगर आपको हाईवे पकड़ना है देन जस्ट टेक सम लेफ्ट टू द सर्विस रोड और सर्विस रोड से हाईवे पे लग जाओ। और अगर आपको हाईवे से एग्जिट लेना है, वेट फॉर योर एग्जिट। एग्जिट आते ही आप एग्जिट ले लो एंड यू कैन एंटर द सिटीज। और मान लो आपका डेस्टिनेशन हाईवे के ऑपोजिट साइड पे है, जस्ट यूज द अंडरपास टू क्रॉस द हाईवे एंड रीच योर डेस्टिनेशन। इस पूरे सिनारियो में नॉट फॉर वन सिंगल मोमेंट यू विल बी ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। और सेम चीज अगर सब लोग फॉलो करना चालू कर देंगे तो मुझे ऐसे लगता नहीं कि ना तो सर्विस रोड्स ना तो हाईवेज ब्लॉक होंगे हमारी वजह से। ये तो हुई हाईवेज की बात, बट देयर आर सर्विस रोड्स इन सम पार्ट ऑफ द सिटीज और इन सम रेसिडेंशियल एरियाज। और इन सर्विस रोड्स का मेन पर्पस है टू आइसोलेट रेसिडेंशियल स्लो स्पीड ट्रैफिक एंड पेडेस्ट्रियंस फ्रॉम द मीडियम स्पीड सिटी ट्रैफिक। और ये सर्विस रोड्स पार्किंग स्पेसेस के लिए भी प्रोविजन क्रिएट करते हैं, पार्किंग स्पेसेस फॉर रेसिडेंट्स, शॉप्स, हॉस्पिटल्स एंड होटल्स। द सेम लॉजिक अप्लाइज हियर। ये सर्विस रोड्स भी बाय डायरेक्शनल नहीं होते हैं एंड इट इज क्लियरली मार्क्ड बाय द प्रॉपर साइनेजेस नेक्स्ट टू द सर्विस रोड्स। द बेस लाइन इज, apart from the road signages dictating the direction of the service roads, the divider on the main road plays a very important role। मेन रोड के डिवाइडर के लेफ्ट में जितनी भी ट्रैफिक मूवमेंट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन, फिर चाहे वो मेन रोड हो या सर्विस रोड्स हो। The traffic movement on the left side of the divider of the main road should always be in one direction. So the direction and speed of your vehicle are of course the main things to remember while you are trying to merge and demerge on the highways. Please remember ये सारी चीजें बहुत ही smoothly होनी चाहिए। There should not be sudden change in the speed of your vehicle which can disrupt the traffic movement on the highways or in the city. The other things to remember are, don't force yourself into the highway traffic movement. Wait for your turn. जब आप हाईवे पे मर्ज करने की कोशिश करते हो, if you don't find a space to merge with the main highway lanes, you can continue driving with the merging lane of the service road. ये merging lane हाईवे के main lanes को पैरेलल चलती है for some distance, तो आप वो यूज कर सकते हो। मर्जिंग लेन सडनली खत्म नहीं होती। वर्स्ट केस यू कैन ऑल्सो यूज द शोल्डर ऑफ द रोड टू ड्राइव पैरेलल टू द हाईवे लेन्स। बट अगर ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ही ज्यादा हैवी है ऑन द हाईवे, देन द सेफर ऑप्शन वुड बी टू स्टॉप जस्ट बिफोर मर्जिंग विद द हाईवे ट्रैफिक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मर्जिंग बहुत ही सेफली होना चाहिए विद द हाईवे ट्रैफिक, जिससे कोई हाईवे ट्रैफिक मूवमेंट डिसरप्ट भी नहीं हो रही है और हाईवे के सारे
सारे लेन्स में चलने वाले लोगों को यू शुड बी विजिबल दैट यू आर ट्राइंग टू मर्ज ऑन टू द हाईवे. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अवॉइड मर्जिंग ऑन टू द हाईवेज अराउंड हेवी व्हीकल्स. हेवी व्हीकल्स हाईवे के आउटर मोस्ट लेन पे चलते हैं एंड दैट इज द लेन वेयर द सर्विस रोड मर्जेस विद द हाईवे. तो अगर वहां पे हेवी व्हीकल्स मौजूद है एट द टाइम ऑफ मर्जिंग, then please remember ऐसे मूवमेंट को अवॉइड करो because heavy vehicles are just big blocks moving at very slow speeds and blocking your vision of the highways for the longest amount of time. तो अगर आप ऐसे टाइम पे हाईवे पे मर्ज करने की कोशिश करोगे you will have no idea what is happening beyond the first lane. और जब बात आती है हाईवेज एग्जिट करने की then make sure आप लेफ्ट इंडिकेटर देके यू आर मूविंग टू द आउटर मोस्ट लेन ऑफ द हाईवे वेल इन एडवांस. और जैसे ही आपको एग्जिट रैम्प आपकी तरफ आते हुए दिखता है, you should again switch on your left indicator and move to the exit ramp gradually. Avoid any sudden direction changes which can confuse and disrupt the whole traffic movement behind you. As soon as you enter the exit ramp, lift off your accelerator and start losing the speed gradually. Please do not try and brake heavily and suddenly at the end of the exit ramp. It can be very dangerous for yourself and the traffic coming from behind you. This whole process will ensure your smooth transition from highways to the cities.